uh, in general with ultimate unlimited news from the spiritual world. In the Bhagavad Gita, it is said that the material world is only a part of the whole creation, and that this earth is only a fragment of the whole material world. There are thousands and thousands of literally men all over the world, and they have created many thousands of literally works for the information of the people in general for thousands and thousands of years. Unfortunately, none of them have brought peace and tranquility on the earth. This is due to a spiritual vacuum in those literatures. Therefore, the Vedic literature, especially the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam, are specifically recommended to suffering humanity to bring about the desired effect of liberation from the pang of material civilization, which is eating the vital part of the human energy. The Bhagavad Gita is spoken message of the Lord himself recorded by Vyasadeva, and the Srimad Bhagavatam is the transcendental narration of the activities of the same Lord Krishna, which alone can satisfy the hankering narration of the pastimes of the Lord, can be described only by liberated soul like Vyasadeva and his bona fide representative, who are completely merged in the transcendental loving service of the Lord. Only to such devotees do the pastimes of the Lord and their transcendental nature become automatically manifest by dint of the devotional service. No one else can either know or describe the act of Lord, even if they speculate on the subject for many years. The description of the Bhagavatam are so precise and accurate that whatever has been predicted in this great literature about 5,000 years ago is now exactly happening. Therefore, the vision of the author comprehends past, present, and future. Such liberated persons as Vyasadeva are perfect not only by the power of vision and wisdom, but also in oral reception, in thinking, feeling, and all other sense activities. A liberated person possesses uh, perfect senses, and which perfect senses only can serve the sense proprietor. Rishikesh Sri Krishna, the personality of Godhead. Srimad Bhagavatam, therefore, is the perfect description of all the perfect personality of Godhead by the all perfect personality Srila Vyasadeva, the compiler of Vedas. Thank you, bro. Again, a beautiful verse. Now, what Narad Muni is saying, "Oh Vyasdev, your vision is completely perfect. Your good fame is spotless. Your firm involvement situated in truthfulness, and thus you can think of the pastimes of the Lord." So it was only Srila Vasudev who can think of the Lord, of the pastimes of the Lord. If you think you can think, no, you cannot think. हम जो हमारा लेके बैठते हैं, ठीक है, वो हम मेले में भी बैठ जाए तब भी हमारा जो माइंड है वो हमें लगता है कि कृष्णा का ध्यान दे रहा है. नो, वर्ल्ड टूर पूरा घूम रहा है, राइट, बट कृष्णा का ध्यान नहीं आ रहा है. कृष्णा इज नॉट इन द सेंटर. कृष्णा के बारे में आई मीन वी कैनॉट, आई मीन सीरियसली कई बार मुझे इस खासकर इस कार्तिक मंथ में था ना, पिता माता जी से बात भी कर रहा था कि वो सो मतलब क्या रियलाइजेशन हुई है मुझे कि इतने दीपदान पे जा रहे थे हम. इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस. मतलब कभी नहीं ऐसा पहले हुआ, राइट. इतने दीपदान हो रहे हैं, वीकडे में भी जा रहे हैं, वीकेंड पे भी जा रहे हैं. और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जैसे मेरा टीवी बिल्कुल नहीं देखा उस मंथ में मैंने, और बहुत सारी और भी गंदी आदतें थी वो सब छूट गई बिकॉज वी वर सो बिजी इन इन दैट दीपदान. बट व्हाट वाज हैपनिंग इज कि हम जा रहे थे, बट देन आई रियलाइज्ड कि यार कृष्णा के बारे में तो सोचा ही नहीं. मतलब वहां पे जाके हम भजन कर रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, बट देन आई रियलाइज्ड कि मैंने कितनी बार एक्चुअल में मैंने कृष्णा की फोटो को देखा होगा. कितनी बार वो एक्चुअल मेरा स्मरणम स्मरणम विष्णु स्मरणम कितनी बार हुआ. नॉट इवन वंस. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स. तो वो एंड दिस रियलाइजेशन केम व्हेन गंगेश्वर प्रभु केम टू माय हाउस. तो वो उन्हें यज्ञ करने के लिए बुलाया हमने, नरसिम्हा यज्ञ करने पे अपने अपने घर. तो उन्होंने तो आर्य बैठा था साथ में.
तो वो आराम आराम से वो जैसे वो अपना वो तैयारी करते हैं और साथ में वो बोलते रहते हैं भगवत गीता या कुछ भी कृष्ण कथा साथ में चलती रहती है। तो आर्य वाज गेटिंग रेस्टलेस, ही वाज सेइंग के फायर 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 लगाओ, उसको फायर देखने में इंटरेस्ट था। तो गंगेश्वर प्रभु बोलते हैं, कहते हैं अच्छा, कहते चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताओ इस होल नरसिम्हा यज्ञ में सबसे मुश्किल चीज क्या है। तो विराज कहता है, कहता प्रभु जी टू लाइट द फायर। कहते नहीं उसमें क्या है, वो तो मैं लाइट कर दूंगा, फायर फायर लाइट हो जाएगी। तो कहते अच्छा तो फिर, कहते फिर और क्या बताओ। कहते टू चैंट द मंत्र। और अभिराज कहता टू चैंट द मंत्र। कहते नहीं वो भी क्या है, वो चैंट तो हो जाते हैं मंत्र बोलने में क्या है। देन ही सेड कि by doing all this the main thing is to think of Krishna. And I was like wow, what a statement. हम सब कुछ कर रहे होते हैं, चीजें हम कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं, बट हमारा ध्यान नहीं होता यार। मैं सामग्री डाल रहा हूँ उसमें, ओम नरसिम्हा बोल रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, बट मैं सोच नहीं, मतलब माइंड में नहीं है, कृष्णा नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू थिंक ऑफ कृष्णा। दैट वाज रियली माइंड बॉगलिंग कि सब कुछ करते हुए भी, इतना सब कुछ कर रहे हैं तब भी कृष्णा के बारे में नहीं सोच रहे। whereas he was thinking he can think of Krishna, and that is why he is Srila Vyasadeva, and that is why he is now glorifying him a little bit, right? That you are perfect and you can, and who the one who can think of Krishna, he can help in liberating the people from this material bondage, right? So this is one point which is coming out of this. The next point which is coming out of here from this Srila Prabhupada purport is कि कितना मंडेन लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं, कितना मंडेन लिटरेचर, राइट? तो कितना मंडेन लिटरेचर हम लोग इसमें इस दुनिया में है, जो कि एवरी डे वी रीड अ लॉट ऑफ लिटरेचर। साक्षी म्यूट कर ले, तेरा बार बार अनम्यूट हो रहा है, राइट? तो उसमें क्या है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास एक बंदा आया। वो बोलता है कि उन्होंने बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप वो क्या करते थे कि ही वाज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ डेली ही वाज पुटिंग वन स्पिरिचुअल पेपर। उनको बोल रहे क्या क्या बात कर रहे हो आप, एक स्पिरिचुअल पेपर हर रोज निकाल रहे हो, दिस इज टू मच, ये तो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने बोला, वो बोलते हैं, कहते ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और जो मटेरियल वर्ल्ड है, राइट, सो द होल कॉस्मोस का एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति भागवतम में आगे जाके हम पढ़ेंगे। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज 1/4 of the spiritual world, and the spiritual world is 3/4, obviously 3/4 and 1/4। तो वो बोल रहे हैं इस 1/4 वर्ल्ड में से, जो इस 1/4 वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड जो कि 1/4 है, उसमें देर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस। और उन बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस में देर आर अगेन बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ अर्थ। अर्थ में से एक अर्थ हमारी है, उस एक अर्थ में से बहुत सारी कंट्रीज हैं, उस बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी स्टेट्स हैं, उस एक स्टेट में से ये कोलकाता एक सिटी है, और उस सिटी के लिए 20 न्यूज़पेपर छपते हैं। एंड वो बोल रहे हैं कि मैं एक दिन में एक निकाल रहा हूँ, विच इज नथिंग। एवरी सेकेंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ये स्पिरिचुअल पेपर शुड बी आउट टू अंडरस्टैंड just the matter, right? And then forget about the spiritual world, which is 3/4, right? तो कृष्ण कथा की जितनी भी ग्लोरिफिकेशन की जाए, जितनी भी ग्लोरिफिकेशन की जाए, that is less। और श्रीला प्रभुपाद ने हमें सब आंसर, सब कुछ है हमारे पास, सारे आंसर्स हमें दे रखे हैं, सब कुछ है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास क्वेश्चंस ही नहीं है। सो वी कैनॉट इवन मैप आंसर्स विद द क्वेश्चंस। दिस इज अवर स्टेट। क्लासेस का, श्रीमद् भागवतम की क्लासेस का पर्पस क्या होना चाहिए? दैट शुड शेक अस कि यार हम क्या कर रहे हैं इस लाइफ में, हमारा क्या गोल है, करना क्या है हमें। दैट शुड डिस्टर्ब अस एक्चुअली। श्रीमद् भागवतम शुड डिस्टर्ब अस
कि यार हमें ये जो मंडेन लिटरेचर जो हम पढ़ रहे हैं, जो मंडेन लिटरेचर या जो मंडेन चीजें हम देख रहे हैं, वी शुड कम्प्लीटली स्टॉप दैट। जैसे मैं पहले नेटफ्लिक्स देखते थे, नेटफ्लिक्स लगा हुआ था, अमेजोन प्राइम था, सारे जितने भी ओटीटी, वो सब धीरे 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 वो क्या होते गए, जैसे जैसे भागवतम पढ़ते गए, जैसे जैसे धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन होती गई, सबसे पहले नेटफ्लिक्स किया, नेटफ्लिक्स की मंथली सब्सक्रिप्शन थी वो चली गई, अमेजोन प्राइम की ईयरली सब्सक्रिप्शन थी, तो वो पूरे जब तक साल तक खत्म नहीं हुआ तो वो चलती रही। ठीक है, फेसबुक, फेसबुक मैंने ऐप डिलीट कर दी, उसके बाद मैं ब्राउजर में जाके वो लॉगिन करके फेसबुक देखता रहा, और उसके बाद मैंने फिर ब्राउजर की कैश डिलीट करी, और एक बार नहीं 2-3 बार मैंने ब्राउजर की कैश डिलीट की कि मैं एफ लिखूं तो नीचे फेसबुक अपने आप ना आ जाए, तो मुझे पूरा facebook.com लिखना पड़े और फिर मैं हर बार लॉग इन करूं। तो ऐसे ऐसे करते 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 धीरे धीरे वो भी मेरी लाइफ से निकल गया। राइट। तो ये सब चीजें तभी जाएंगी जब हम श्रीमद् भागवतम को सीरियसली लेंगे, और जब हम ये मंडेन चीजें हमारी लाइफ से, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि जितना भी ये मंडेन लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, दैट शुड गो अवे फ्रॉम आवर लाइफ। एंड और इवन जो हमारी भक्ति विद्या भी है, दैट इज अ वंडरफुल सोर्स। फ्राइडे, तभी हम बोलते हैं कि फ्राइडे, फ्राइडे क्लास वी शुड नेवर मिस, कुछ भी मिस कर लें हम, ठीक है, भक्ति शास्त्री मिस हो जाए, भक्ति वैभव मिस हो जाए, बट भक्ति वृक्षा शुड नॉट बी मिस, बिकॉज दैट इज द ओनली वन वन फोरम जहाँ पे जाके हम वो कनेक्ट होते हैं बेसिकली। राइट, इट शुड नॉट बी टेकन एज अ सोशल गैदरिंग और समथिंग लाइक दैट, एंटरटेनमेंट है। इट शुड रादर, इट शुड प्रोवोक अस समथिंग डीपर इनसाइड अस, अदरवाइज हम अपने कंफर्टेबल मटेरियल वर्ल्ड में ही रह जाएंगे, विच इज नॉट गुड फॉर अस। राइट। तो एक और पॉइंट इसमें आ रहा था, आई थिंक या मोर और लेस दिस इज ऑल व्हाट ही इज सेइंग। हाँ, एक ये पॉइंट बोला था इस परपोर्ट में, नो वन द डिस्क्रिप्शन ऑफ भागवतम आर सो प्रिसाइज। अब वो भागवतम में फेथ की बात भी कर रहे हैं कि भागवतम में जो लिखा है वो कितना ट्रू है, हम क्यों यकीन करें कि जो ये लिखा हुआ है, बिकॉज इट हैज बीन प्रिडिक्टेड इन ग्रेट लिटरेचर 5000 years ago is now exactly happening। जो हमने 5000 साल पहले इसमें लिखा हुआ था, दैट इज हैपनिंग। राइट, इसमें लिखा है कि 900,000 स्पीशीज ऑफ वाटर, वाटर में 900,000 स्पीशीज हैं। राइट। तो साइंटिस्ट्स आर डिस्कवरिंग एवरी डे अ न्यू वन, देयर थ्योरीज आर चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, आज ये मिल गई, आज ये मिल गई, आज ये मिल गई। इट इज, देयर नंबर्स आर नॉट कांस्टेंट, नॉट स्टैटिक, दे आर चेंजिंग एवरी डे। ठीक है, हमने कब से बोला हुआ है भागवतम में कि जो काउडंग है, इट इज प्यूरिफाइंग इन नेचर। राइट। जब पूतना का वध किया था तो कृष्णा भगवान को काउ यूरिन एंड काउ डंग से उन्होंने उनके फेस पे लगाया टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, यशोदा माँ ने। राइट, एंड द सेम थिंग नाउ वी डू, राइट, वी ऑल्टर पे हम लगाते हैं टू क्लीन। अब सोचो किसी का एक्सक्रीटा, किसी का वेस्ट, हाउ कैन इट बी प्यूरिफाइंग, बट इट इज। अगर ये मैं बात थोड़े साल पहले बोलता, भागवतम का रेफरेंस लेके कोई नहीं मानता। अब क्योंकि साइंटिस्ट ने भी बोल दिया कि हाँ यार, इट इज अ वेरी यूनिक कॉम्पोजिशन, उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पता नहीं क्या क्या है, सारे कंपोनेंट्स हैं उसमें, दे आर ऑल्सो नाउ एग्रीइंग। ठीक है, और बहुत सारी प्रिडिक्शन है जो कि श्रीमद् भागवतम में 5000 साल पहले लिखी गई हैं, विच पीपल एंड साइंटिस्ट आर नाउ एग्रीइंग टू। सीधा पहले ही हमारा भूगोल, सिंपल सी एग्जांपल है, हम भूगोल, हमने कब से बोला हुआ है कि धरती गोल है, ये अर्थ इज राउंड। उन्हें क्या लगता था साइंटिस्ट को कि सीधा जाएंगे, एक पॉइंट आएगा, वहां से विल ट्रिप ओवर। Right, so there are many things which are, so if these things are true then this must be true as well। Right, so अब क्या बोल रहे हैं, अब नारद देव शिला व्यासदेव को बोल रहे हैं कि यार अगर तेरे जैसा क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, हु कैन थिंक ऑफ कृष्णा ऑल द टाइम, हु इज परफेक्ट, स्पॉटलेस, एवरीथिंग, अगर वो ऐसे इनडायरेक्ट ग्रंथ लिखेगा तो लोगों का क्या होगा। राइट, तो वो नेक्स्ट वर्स में वो बता रहे हैं कि लोगों का क्या होगा इनडायरेक्ट वर्सेस ये जो महाभारत और ये सब चीजें पढ़ते रहेंगे, तो उनकी क्या हालत होगी। आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट वन, 8 minutes लेफ्ट। ततोऽन्यथा किंचन यद विवक्षतः पृथक दृशा तत्कृत रूप नमाभि नाकर नाकर्हित क्वापि च
दुःस्थिता मतिर्लभते वतात हता नौर इव स्पदम. Whatever you desire to describe that is separate in vision from the Lord simply reacts. Nothing will happen, but it will simply give the reactions, whatever is separate in vision from the Lord. जो भगवान से हटके कुछ भी बताएगा उसका क्या करेगा, उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा. रिएक्शन कैसा होगा, विद डिफरेंट फॉर्म्स, नेम्स एंड रिजल्ट्स. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो रिएक्शन कहाँ कहाँ से आएगा. टू एजिटेट द माइंड as the wind agitates a boat which has no resting place. Right? तो 7 minute बचे हैं. Should we do it, or if anyone has any questions or corrections, we want to discuss something else? वही आप डिसाइड करो, आपको पता होगा. नहीं, हाँ, मैं तो कर ही देता हूँ, मुझे तो अच्छा क्वेश्चन नहीं आएंगे मेरे पास. All right, we'll quickly finish it off then. आप पढ़ोगे प्रभु? Sri Vyasadeva is the editor of all descriptions of the Vedic literature, and thus he has described transcendental realization in different ways, namely by fruitive activities, speculative knowledge, mystic powers, and devotional service. Besides that, in his various Purana, he has recommended the worship of so many demigods in different forms and names. The result is that people in general are puzzled how to fix their mind in the service of the Lord. They are always disturbed about finding the real path of self-realization. Srila Narad Deva is stressing this particular defect in the Vedic literature compiled by Vyasadeva, and thus he is trying to emphasize describing everything in relation with the Supreme Lord and no one else. In fact, there is nothing existent except the Lord. The Lord is the manifested in different expansions. He is the root of complete tree. He is the stomach of all the complete body. Pouring water on the root is the right process to water the tree, as much as feeding the stomach supplies energy to all parts of the body. Therefore, Srila Vyasadeva should not have compiled any Purana other than the Bhagavad Purana, because a slight deviation from that may create havoc for self-realization. If a slight deviation can create such a havoc, then what to speak of deliberate expansion of the idea separate from the absolute truth personality of Godhead. The most effective part of worshipping demigod is that it creates a definite conception of pantheism, ending destructively in many religious sects, detrimental to the progress of the principle of Bhagavatam, which alone can give the accurate direction for self-realization in eternal relation with the personality of Godhead by devotional service in transcendental love. The example of the boat disturbed by whirling winds in the suitable in this respect. The diverted mind of the pantheist can never reach the perfection of self-realization due to the disturbed condition of the selection of the object. Thank you, Prabhu. Right, again, very important verse. इसमें वो बोल रहे हैं कि there is no resting place. So हमारा mind is so disturbed, and if we do not put Krishna in center, right, there will be reactions. First of all, we have to face the reactions which we have discussed earlier, right? अगर हम materialist fruitive activities करेंगे तो उनका हमें reaction झेलना पड़ेगा, right? अगर हम if we are not dovetailing it in the service of Krishna, right? And second is कि resting, loud and clear message इसमें दिया गया है कि which has no resting place. So there is only one resting place for our mind, for our agitating mind, which is the lotus feet of Krishna. So this world can never be the resting place for our mind. This will always give us stress. Different struggling or stressing situations में हमें डालेगा, और even if we are not planning for it, right? तो महाभारत में जैसे श्री व्यासदेव ने लिखा है, राइट, वो उसमें यक्ष प्रश्न, राइट,
यक्ष के पास जाते हैं, तो उसमें युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं कि ऐसी कौन सी सबसे वंडरफुल चीज क्या है इस दुनिया में। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि सबसे वंडरफुल चीज है कि एवरी सेकेंड पीपल आर डाइंग, एवरी सेकेंड पीपल आर डाइंग एंड स्टिल they think that they will not die, right? So they are far away from the reality. So Srimad Bhagavatam brings us back to the reality. It sobers us, right? It tells us कि हमारी रेस्टिंग प्लेस का, जैसे ब्रिजेश प्रभु उस दिन बता रहे थे ना कि बोट का अगर एंकर ढीला होगा तो बोट इधर उधर जाएगी। तो बोट का जो एंकर है ना, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड दैट शुड बी ओनली कृष्णा, दैट शुड नॉट बी एनी अदर रिलेशनशिप्स, राइट? वो और कोई रिलेशनशिप हमारी क्या है कि वी रिलाई ऑन अवर फ्रेंड्स, फैमिलीज, एवरीथिंग, राइट? बट भुरिजन प्रभु का लेक्चर था एक, तो उसमें वो बोल रहे थे, कहते वी रिलाई सो मच ऑन अदर्स एंड वी डोंट टेक कृष्णा इन सेंटर। वो द्रौपदी की भी वो चीरहरण की एग्जांपल दे रहे थे कि शी ट्राइड calling each and everyone like Bhishma Dev, Dronacharya, Kripacharya, everyone, but in the end she called Krishna, right? And he's the one who came for her help, राइट? सेम में वो भुरिजन प्रभु बता रहे थे कि तुम अगर रेलवे ट्रैक पे खड़े हो, वो मोबाइल की बात कर रहे थे कि मोबाइल तुम्हारा, तुम कहते हो कि यार रिट्रीट में भी तुम अपना मोबाइल साथ में लेके आते हो, चैंटिंग रिट्रीट में और ये सब जगह पे, तो बोलते हो यार अगर तुम कहीं रेलवे ट्रैक पे खड़े हो, तुम्हारी वहां फंस गए हो तुम और ट्रेन आ रही है, तो कहते हो उस टाइम पे क्या तुम अपना मोबाइल निकाल के फोन करोगे किसी को कि आके मुझे, फ्रेंड को कि मुझे बचा ले, कि तुम कृष्णा का ध्यान करोगे लास्ट समय, अंत काले च मामेवा, हाँ? तो दैट इज द पॉइंट कि वी आर, ठीक है, इट डजंट मीन कि वी शुड नॉट ट्राई अवर मटेरियल थिंग्स, हमें अपनी मटेरियल थिंग्स लगानी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी शुड इनकलकेट द हैबिट ऑफ प्रेइंग टू कृष्णा, ऑफ इंक्लूडिंग हिम इन अवर ईच एंड एवरी डे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तंग करो उनको, ही वांट्स टू इंटरफियर, ही इज अवर फादर, राइट? ही इज अवर स्पिरिचुअल फादर, ही इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ही इज अवर फादर। तो वी शुड try to put him everywhere, wherever we are in trouble or in distress or in happiness, everywhere. So एक मिनट बचा है, we'll have one more point. हाँ, डेमीगॉड्स का एक जो पॉइंट उन्होंने बोला था कि पैंथिज्म, सो इट विल क्रिएट अ हैवक फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन। अगर हमारे पास, दिस इज व्हाट हैज शिला व्यासदेव हैज डन आफ्टर गिविंग ऑल दोज वेदास एंड ऑल, उन्होंने इतने सारे डेमीगॉड वर्शिप, कर्मकांड, ये सब कुछ बता दिया, तो बंदा वो कंफ्यूज हो गया है। एज अ रिजल्ट जो कॉमन मैन है वो कंफ्यूज हो गया, भाई इसके पास जाएं तो ये नाराज होगा, ये इसके पास जाएंगे तो ये नाराज होगा, तो क्या करें हम? वो कहते जी हम सबको ही पूछ लेते हैं थोड़ा 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 थोड़ा। और कृष्णा ने भगवत गीता में क्या कहा है कि सिंगल फोकस्ड अटेंशन ऑन मी, ओनली ऑन मी, नॉट बहुशाखा। योर फोकस शुड नॉट बी लाइक ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, नो, इट शुड बी सिंगल पॉइंटेड फोकस होना चाहिए, ओनली ऑन मी, राइट? दैट विल टेक, तो दिस इज व्हाट, हाँ, डेमीगॉड्स, अगर डेमीगॉड्स की करते रहेंगे तो क्या होगा? पैंथिज्म होगा। पैंथिज्म, एथिज्म मीन्स नो गॉड, मोनोथिज्म मीन्स वन गॉड, पैंथिज्म मीन्स मल्टीपल गॉड्स। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, सभी भगवान हैं, हम तो सभी को बहुत बढ़िया है, ठीक है ना? हम ऐसे नहीं करते कि कृष्णा ऊपर है शिव जी नीचे है, नहीं, सभी बहुत बढ़िया है, ठीक है? दिस इज व्हाट हैज डन with this all these Vedic literatures, and it is disastrous. So thankfully Srila Vyasadeva has written Srimad Bhagavatam, which is Amal Puran, which is the topmost Puran and which glorifies Krishna and only Krishna. All right, thank you very much. Any questions, comments, corrections? नहीं, ऑल गुड, चलो ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, Hare Krishna. कृष्णा।